ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਤੇਵਰ ਪਏ ਨਰਮ। ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਗੰਭੀਰਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਖਦਸ਼ਾ। ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਿਸ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ। ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਵੇਗੀ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਫੈਸਲਾ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਬੋਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮੁਸਾਫਰ ਖੱਜਲ। ਮੁਕਤਸਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਡਰਾਈਵਰ। ਪਿੰਡ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ। 8 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 11 ਜ਼ਖਮੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੁੱਟ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟੇ 50,000 ਰੁਪਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੁਆਏ ਗਏ ਕੜੇ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਡੀਈਓ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ। ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਜੀਓ 에ਅਰ ਫਾਈਬਰ। 599 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪਲਾਨ। 5G ਸਪੀਡ ਦੇਵੇਗਾ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਡਿਵਾਈਸ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਤੇਵਰ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰॉयटर्स ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। The government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear. It is extremely serious, and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. Over the course of the summer, we have been working closely with our intelligence agencies who are moving forward in their analysis. We wanted to make sure that we had solid grounding in understanding what was going on in analysis and indeed in facts. We wanted to make sure that we fully shared with the government of India the seriousness and the depths of our preoccupations and indeed conclusions. ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਔਰ ਰॉयटर्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ शैलेंद्र वांगू इस वे फोन लाइन से मेरे नाल मौजूद ने। शैलेंद्र के नाल गल करते हैं। शैलेंद्र, जस्टिन ट्रूडो का बयान और उस बयान में खास करके इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते, एस्केलेट करना नहीं चाहते इस पूरे मामले को, लेकिन वो चाहते हैं कि भारत गंभीरता दिखाए। किस तरह की गंभीरता की उम्मीद कनाडा कर रहा है भारत से? देखिए गगन, ये कहीं ना कहीं टोन डाउन तो किया है ट्रूडो की तरफ से, लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह से ट्रूडो ने कल आरोप लगाए हैं भारत पे, उसके बाद अब जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जो खालिस्तानी सपोर्टर्स कनाडा में हो या बाकी देशों में हो, उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब एक देश का प्रधानमंत्री ही दूसरे देश पर आरोप लगा रहा हो, तो जाहिर तौर पर जो उनके ऐसे एलिमेंट्स जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं। और इसी बीच हमारे पास जो खबर आ रही है कि उसके मुताबिक सिख फॉर जस्टिस जो एक बैंड टेरर आउटफिट है, उन्होंने 25 सितंबर को अब जो इंडियन मिशन हैं उनको बंद करने के लिए, उनका घेराव करने के लिए कॉल दिया है। यानी 5 दिन बाद ये कॉल उन्होंने दिया है। तो ये अपने आप में कंसर्न दिखाता है कि एक तरफ जहां भारत लगातार ये कह रहा है कि आपको ऐसे एलिमेंट्स पर रोक लगानी चाहिए, तो ऐसे में हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से कदम उठाए गए, यूके की तरफ से कदम उठाए गए, लेकिन कनाडा की तरफ से फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उनको आजादी दी गई है। तो ऐसे में जब ये देखना होगा कि 25 सितंबर को अब ये कॉल दिया गया है सिख फॉर जस्टिस जो बैंड आउटफिट है उनकी तरफ से, तो ऐसे में किस तरह का प्रोटेक्शन उनको मिलता है। हालांकि ट्रूडो ये कह रहे हैं कि वो एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया इसमें कोऑपरेट करे। इंडिया साफ कर चुका है कि इस मामले में भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और बजाय इसके कि भारत पर आरोप लगाएं, आप उन खालिस्तानी समर्थकों पर आप फोकस करिए जो जिनको शेल्टर मिला हुआ है अभी कनाडा में। बिल्कुल शैलेंद्र, और जब ट्रूडो यहाँ थे, भारत में थे, तो उन्होंने एक शब्द, एक टर्म इस्तेमाल की थी और उस टर्म को लेकर बहुत से सवाल उठते भी रहे हैं। उन्होंने कहा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी कनाडा में है और उस पर हम रोक नहीं लगाते। ये जिस तरह के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस या ये कहा जाए कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन, पाबंदी शुदा जो संगठन है भारत में जिन पर पाबंदी है, वो जब इस तरह की कॉल देते हैं, आप बता रहे हैं सिख फॉर जस्टिस ने कॉल दिया, और इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि सिख फॉर जस्टिस 25 सितंबर को भारतीय कॉन्सुलेट और भारतीय जितने वहाँ एम्बेसीज हैं उन सब के सामने प्रदर्शन का ऐलान कर चुका है। तो क्या इसे भी कनाडा सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी तक ही सीमित रखता है, या सीधा सीधा एक देश की प्रभुसत्ता पर इसे हमला माना जाता है कनाडा में? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा गगन कि जिस तरह से ये कॉल दिया गया है, या इससे पहले भी जो इस तरह जो सिख फॉर जस्टिस लगातार ऑपरेट कर रहा है वहां से, और भारत को तोड़ने की बात कर रहा है, भारत की संप्रभुता पर हमले की बात कर रहा है, तो इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे कहा जा सकता है? जाहिर तौर पर जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक रिपब्लिक है जिसमें जो देश है वो डेमोक्रेसी से चलता है, तो ऐसे में कोई विदेश में बैठ के अगर देश को तोड़ने की बात करे तो उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे कहा जा सकता है? इसका एक्सप्लेनेशन खुद शायद ट्रूडो के पास भी नहीं होगा। हालांकि अब देखिए कि इस मामले को लेकर लगातार भारत कहता रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स जो इंडियन मिशंस को, इंडियन इंटरेस्ट को, इंडियन जो वहां पर एनआरआईज जो हैं, जो भारतीय वहां रहते हैं, उन पर भी लगातार हमले होते रहे हैं, मंदिरों पर हमले हुए हैं, महात्मा गांधी की मूर्तियों पर लगातार हमले होते रहे, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा हो सकते हैं? हालांकि वो कह रहे हैं, कनाडा ये कहता है कि हम वायलेंस को समर्थन नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मिशन पर जब हमला होता है तो सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई जाती है, और ये होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि वो सिक्योरिटी मुहैया कराए ताकि इस तरह के हमलों को अंजाम ना दिया जा सके। तो ये तमाम जो बातें हैं सिर्फ और सिर्फ शेल्टर करने के लिए है, उन पर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उनको प्रोत्साहित किया जाता है इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक कंपल्शन है, मजबूरियां हैं ट्रूडो की, इसलिए वो इस तरह के बयान देते आ रहे हैं। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि जो अब कनाडा में जो ट्रूडो के खिलाफ हैं, उन्होंने भी ट्रूडो से कहा है कि वो आप इन तमाम जो आरोप अपने लगाए हैं उसके सबूत आप सामने रखिए, ये वेग बातें मत करिए, उसके बाद ही जो ट्रूडो ने जो बातें रखी वो क्लियर हो पाएंगी। हालांकि इसको लेकर अभी तक कनाडा की तरफ से कोई साफ स्टेटमेंट नहीं है। बिल्कुल, कनाडा की तरफ से कोई अभी साफ स्टेटमेंट नहीं दी गई है, और बहुत बड़ी बात यह कि सिख फॉर जस्टिस जो भारत में पाबंदीशुदा संगठन है, वो कनाडा में इस बात की कॉल दे रहा है कि 25 सितंबर को
वहां भारतीय एम्बेसीज के सामने या भारतीय कॉन्सुलेट के सामने प्रदर्शन किया जाए। उन एम्बेसीज को और कॉन्सुलेट को बंद रखने की कॉल, उनके सामने बंद की कॉल एसएफजे की तरफ से दी गई है। इस पर कनाडा का रुख क्या रहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। और सब तो बड़ा सवाल इस ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ट्रैवल एडवाइजरी एक पासे जारी हो रही सी, एक पासे जस्टिन ट्रूडो ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸਐਫਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਐਫਜੇ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਉਧਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਭ ਦੇ, ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्रूज लाइनर ते शुभ दी परफॉर्मेंस है ते शुभ दा प्रोग्राम रद्द करने की मंग की जा रही है। शुभ ने भारत के विवादित नक्शे नूं पोस्ट किया सी। बोट कंपनी ने इस तो बाद शुभ दे इंडिया टूर की स्पॉन्सरशिप रद्द कर दी। 3 सितंबर तो जिहड़ा 23 सितंबर तो शुभ दा इंडिया टूर शुरू हो रहा है ते विराट कोहली ने भी शुभ नूं इंस्टाग्राम ते अनफॉलो कर दिता है इस पूरे घटनाक्रम तो बाद। मेरे सहयोगी अमित राय इस वेले मेरे नाल फोन लाइन पे मौजूद ने। अमित, मुंबई में रैपर शुभ के पोस्टर्स पर कालिख पोती गई है, क्या जानकारी मिल पा रही? देखिए 23 तारीख से ये प्रोग्राम है और बीजेवाईएम जो है पहले से विरोध कर रहा है और पिछले जो है 5 दिन में ये दूसरी बार जो है कालिख पोती गई है पोस्टर पर। 15 तारीख को बीजेवाईएम के लोगों ने ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के सत्यनारायण से मुलाकात की थी और उन्होंने विज्ञापन दिया था इस प्रोग्राम को कैंसिल किया जाए, नहीं तो हमारा विरोध जो है जारी रहेगा। और देर रात जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जो है सिंगर सुखजीत सिंह और शुभ का मुंबई में विरोध हुआ। उनके पोस्टर फाड़े गए, उनकी कालिख पोती गई और साफ तौर पे जो होने वाले कंसर्ट का जो है वो विरोध जो है किया जा रहा है। यहाँ पर मैं को बताऊँ, कल जो है जो बोट कंपनी जो स्पॉन्सर भी कर रही थी उसने जो है अपनी स्पॉन्सरशिप जो है वो वापस ले ली है। कंपनी ने जानकारी अपने ट्विटर हैंडल जरिए जारी की थी और ये बताया था कि बतौर भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री और कम्युनिटी को लेकर हम प्रतिबद्ध है। इसलिए जब हमें कलाकार शुभ के इस साल की शुरुआत में एक बयान के बारे में जानकारी मिली तो हमने उसके शो से स्पॉन्सरशिप को वापस लेने का ऐलान करते हैं। कंपनी ने आगे लिया कि हम भारत में वाइब्रेंट म्यूजिकल कल्चर का समर्थन करते रहेंगे और कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मंच मुहैया कराते रहेंगे। तो बोर्ड कंपनी ने अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली है, लेकिन पूरा विवाद जो है उस पर बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये कंसर्ट हुआ तो कहीं न कहीं जो है इसका खामियाजा जो है स्पॉन्सरशिप जो दे रहा है उसको, जो कंसर्ट करा रहा है उसको, जिस क्रूज में जो ये प्रोग्राम होने वाला है उसको सबको भुगतना पड़ेगा। तो लगातार जो है इसके खिलाफ बीजेवाईएम यानी भारतीय युवा मोर्चा का प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। जी बिल्कुल, बीजेवाईएम ने साफ तौर से कहीं ना कहीं एक चेतावनी दे दी है कि जो आयोजन करता है उनको भी, जो स्पॉन्सर करा रहे हैं उनको भी, और जो इसमें परफॉर्म करेंगे कहीं ना कहीं खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। अमित राय मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ बीजेवाईएम ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਤੇ ਕਾਲਿਖ ਪੋਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।